बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 टीचर्स गायनेकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी। ओके, implantation and the establishment of pregnancy. After ovulation, the cells of dominant follicle from the corpus luteum and the corpus luteum produces large amount of progesterone. ओके तो हमने क्या बात की थी कि ओवुलेशन जो है वो कब होती है। ओवुलेशन के लिए हमने कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ follicular phase and the second half of menstrual cycle is the luteal phase, and luteal phase is always stable, it is 14 days. तो better term is for ovulation is that 14 days before the next menstrual cycle. ठीक है, तो it is not 14 days after the first menstrual period day, but it is 14 days before the next menstrual cycle. Okay, after ovulation, what happens, the cells of the dominant follicles they form corpus luteum, and corpus luteum then produces large amount of progesterone. That's why in patients where ovulation does not occur, lack of progesterone that causes irregular vaginal bleeding, or in case of polycystic ovaries they cause amenorrhea. Okay, so progesterone prepares the endometrium to support a pregnancy. What I told you, that P for progesterone, P for pregnancy, and P for protection. So progesterone protect pregnancy. What next? Successful implantation occurs when the oocyte is fertilized in the fallopian tube and implants in the endometrium. Okay, so normally fertilization occurs in the fallopian tube, and then they implant the fertilized ovum, or so-called the embryo implant in the endometrium around 7 days after ovulation. So remember that it is 7 days after ovulation that it implants in the endometrium. The implanted blastocyst secretes human chorionic gonadotropin, and now HCG production is from implanted blastocyst. ठीक है, the cell which becomes placenta, they produces HCG. Okay, so corpus luteum is providing progesterone to the pregnancy, and placenta is providing human chorionic gonadotropin to the pregnancy. Okay, exponentially increasing HCG acts on the corpus luteum to rescue it from the luteolysis, to maintain progesterone secretion, prevent menstruation, and support the early conceptus. So जो बीटा HCG रिलीज़ हो रहा है उसका क्या फंक्शन है कि वो कॉर्पस लूटियम को भी स्टेबलाइज रखेगा. इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली प्रेगनेंसी में हम क्या कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है, आप उसको बीटा HCG क्यों दे रहे होते हैं? सिर्फ इस वजह से ताकि जो कॉर्पस लूटियम बना है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें. ठीक है, ताकि वो यूटिलाइज ना हो और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहे. जब वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट प्रोटेक्ट्स द प्रेगनेंसी. लेटर ऑन क्या होता है कि प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो फिर कॉर्पस लूटियम की ज़रूरत नहीं रहती, बट इट टेक्स few months. Okay, next, corpus luteum supports the pregnancy for approximately 8 weeks, after which the early placental tissue becomes the main source of progesterone support. ठीक है, तो हमने भी ये क्या बात की कि corpus luteum जो है वो स्टार्ट में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और आफ्टर दैट प्रोजेस्ट्रॉन इज़ प्रोड्यूसेस बाय द प्लेसेंटा, सो इट सपोर्ट इटसेल्फ. तो फिर वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको कॉर्पस लूटियम की एज सच ज़रूरत नहीं रहती. HCG can be detected in the urine in sensitive pregnancy test 1 or 2 days before the expected date of menstruation. तो जो HCG है यूरिन में, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि यूरिन में जो HCG है या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आता है फ्यू डेज आफ्टर when you overdue ना, मीनिंग के फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन से फ्यू डेज ओवर जब होते फिर प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है यूरिन में. बट जो सेंसिटिव किट है वो HCG को डिटेक्ट कर लेती हैं इवन 1 to 2 days
before expected date of menstruation. So remember this point as well. इसको हाईलाइट कर लेते हैं. अच्छा, हाईलाइट करने वाली चीज़ें क्या हैं कि नंबर 1 पे कि आफ्टर ओव्यूलेशन होता क्या है. वन थिंग कि डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो कॉर्पस लुटियम बन जाएगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा. इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा. इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी एंड fertilization occurs where in the fallopian tube and implant in the around when implantation occurs 7 days after the ovulation. And the implanted blastocyst what it produces beta hcg produce कर रहा hcg and exponentially increasing hcg. Now what hcg causes, what is the function of hcg. It increases and acts on the it rescues the corpus luteum from luteolysis to maintain progesterone. Okay, तो corpus luteum की support is required for the first 8 weeks mostly, and later on early placental tissue becomes the main support of the progesterone. And HCG can be detected in the urine even 1 to 2 days before the menstruation. So this is more important point, so highlight it. Next है most women delay टेकिंग ए प्रेगनेंसी टेस्ट अंटिल आफ्टर अ मिस पीरियड. तो ज़्यादातर पेशेंट्स कब होते हैं, कब करते हैं, जब मिस पीरियड्स हैं. ये जो जल्दी टेस्ट करने वाले लोग हैं वो कौन से होते हैं, जो कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं फॉर द प्रेगनेंसी, वो पहले टेस्ट कर लेते हैं. However, it is relatively common for the positive pregnancy test to occur just prior to the time of expected period and for menstruation to occur as expected or 1 to 2 days later with a negative pregnancy test thereafter. Okay, so it is relatively common for the positive pregnancy test to occur just prior to or time of expected periods. ठीक है, तो दिस इज अगेन वही बात कि कब पॉजिटिव आ सकता है. इवन 1 to 2 days. अच्छा, just prior to the periods and for the menstruation to occur as expected or 1 to 2 days later with a negative pregnancy test thereafter. Okay, this transiently positive HCG is a result of प्रेगनेंसी फेलियर. इस नेगेटिव टेस्ट को हम क्या कहते हैं कि जो एक दफ़ा पॉजिटिव आया और फिर दोबारा फेल हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल जो प्रेगनेंसी होती है कि एक दफ़ा उसमें कोई एविडेंस, अल्ट्रासाउंड एविडेंस नहीं मिलता प्रेगनेंसी का, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आता है और फिर कोई अल्ट्रासाउंड पे एविडेंस नहीं मिलता और ऑटोमेटिकली पीरियड्स आ जाते हैं और फेल हो जाती है प्रेगनेंसी. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो अबाउट द बायोकेमिकल मिसकैरेज. This transiently positive HCG is a result of pregnancy failure during the early stages of implantation and it is known as biochemical pregnancy. Yes. ठीक है, this is a transvaginal ultrasound scan can detect an early intrauterine gestational sac, the first sign of normal pregnancy at around 5 weeks. तो फर्स्ट आपको गेस्टेशनल सैक कब मिलेगा, एट अराउंड 5 weeks. Important. Again, a few days later, a circular yolk sac can be seen within the gestational sac and the embryonic fetus can usually be identified after 5.5 week gestation. The fetal heartbeat may be visible as early as 6 weeks. So these all terms are important. कि फीटल हार्ट बीट आपको कब मिलेगी, योग सैक आपको कब विजिबल होगा. तो योग सैक के लिए 5.5 वीक्स है, गेस्टेशनल सैक के लिए 5 वीक्स है और हार्ट बीट के लिए 6 वीक्स. ओके, दिस इज़ अबाउट इम्प्लांटेशन दैट इज़ एट 7 to 10 days. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, यूट्राइन कैविटी, और day 1 day 2 जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है. Okay. The gestational age is calculated from the LMP rather than टाइम ऑफ कंसेप्शन. ठीक है, तो जो गेस्टेशनल एज है वो हम कहाँ से निकाल रहे होते हैं, फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से. लेकिन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पे कंसेप्शन तो नहीं होती ना, तो इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बट नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन. व्हेन समवन इज 6 weeks प्रेग्नेंट, दिस मीन्स दे हैव कंसीव्ड 4 weeks प्रीवियसली. यानी कि एटलीस्ट 2 weeks को जो टाइम हम निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड है फॉर ओवुलेशन का, तो
वो अगर हम माइनस करें तो वो एक्चुअली वो कितनी प्रेग्नेंट होती है, 4 वीक्स, जब हम पेशेंट नॉर्मली 6 वीक्स ले रहे होते हैं। तो एज्यूमिंग दे हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 28 डेज़ का साइकिल है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट sometimes causes the patient some confusion in the early stage of pregnancy. A normally developing intrauterine pregnancy, serum concentration of HCG will normally double every 48 hours. तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बाद में क्लिनिकली यूज़ भी करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में एवरी 48 आवर्स बीटा HCG जो है वो डबल हो रहा है। अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विद सीरम बीटा HCG concentration of more than 1500 international units should be able to be confirmed as intrauterine on a transvaginal ultrasound. Very important point, very important point and very important point. Reason being कि आपको बाद में आप जगह जगह पे सोचेंगे कि किस लेवल पे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमें डिटेक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी को, और किस लेवल पे वजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है। तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर या इससे ज़्यादा पे ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, और 6500 इंटरनेशनल यूनिट पे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो डिटेक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब मिसकैरेज की बात, मिसकैरेज इज़ अ प्रेगनेंसी दैट एंड स्पॉन्टेनियसली बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो समवेयर इट इज़ रिटन 20 वीक्स, तो नाउ यू मस्ट बी क्लियर कि इट इज़ अगेन 24 वीक्स, न्यू एडिशन है 10 टीचर्स का, 24 वीक्स आपको कट ऑफ दिया फॉर ओके। इमेज ऑफ एन अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद योग सैक की बात हमने क्या की थी, तो ये दिस इज अल्ट्रासाउंड जो कि हमें दे रहा है 5 to 6 वीक्स। योग सैक हमने कहा था कि हमें 5.5 वीक्स में मिलेगा, और हार्ट बीट हमने कहा था कि हमें 6 वीक्स में मिल जाती है। ठीक। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ मिसकैरेज इज़ वजाइनल ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन साइन के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं, किसका मोस्ट कॉमन साइन क्या है, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइन इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग है, तो जो मिसकैरेज है उसका मोस्ट कॉमन साइन क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग। इंसिडेंस, miscarriage is common occurring in 10 to 20% of clinical pregnancies। ठीक है, तो मिसकैरेज नॉर्मली जो है वो 10 to 20% क्लिनिकल प्रेगनेंसीज में। क्लिनिकल प्रेगनेंसी कौन सी है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल प्रेगनेंसी एंड अ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, जो कि सिर्फ लैब टेस्ट पे आएगी, जिसमें सिर्फ HCG पॉजिटिव होगा, बाद में नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज़ ओनली बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। और क्लिनिकल प्रेगनेंसी जिस पे आपको अल्ट्रासाउंड एविडेंस भी मिलेगा, with the risk increasing with the maternal age। जितनी ज़्यादा एज ज़्यादा होगी उतना ही मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता जाएगा। क्लिनिकली मिसकैरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग। और ये टेबल क्या बता रहा है आपको कि रिस्पेक्टिव क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन फाइंडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस। टाइप्स ऑफ मिसकैरेज विद रेलिवेंट अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। थ्रेटन मिसकैरेज में क्या होंगे आपके पास, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी आपको मिलेगी, फर्टाइल हार्ट रेट पॉजिटिव होंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि वजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन हो सकती है। स्पेकुलम पे क्या है, सर्वाइकल हाउस क्लोज हो सकती है। मैनेजमेंट सपोर्टिव होगी, इसमें डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक हम इसमें मैनेजमेंट नहीं करते। तो इनएविटेबल मिसकैरेज, इनएविटेबल में क्या है, अगर आपके पास आ जाता है थ्रेटेड मिसकैरेज तो सिंपली आपने उसको कंजर्वेटिव ऑप्शन देनी है। इनएविटेबल मिसकैरेज, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, वजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ऊपर क्या था, वजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन उसमें भी था, और इसमें और उसमें फिर क्या डिफरेंस हो गया, उसमें ऑस क्लोज है और इसमें ऑस ओपन है, दैट इज़ इनएविटेबल मिसकैरेज। ठीक है। और इंट्रायूट्राइन इनएविटेबल मिसकैरेज के साथ उन्होंने कहा कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नो फिटल हार्ट नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि फिटल हार्ट नहीं होंगे। फिटल हार्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर ऑस ओपन है, मेम्ब्रेन्स बल्ज कर रही हैं, तो मिसकैरेज तो इनएविटेबल हो ही गया। ठीक है। अगर हार्ट बीट नहीं होगी फिर तो बात और तरह की हो जाती है ना। तो एक्सपेक्टेंट मेडिकल और सर्जिकल हमने इसमें ट्रीटमेंट करनी है। चाहे अगर आप एक्सपेक्टेंट भी रखेंगे तो उसने मिसकैरी हो जाना है, या फिर आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दें, या फिर आप उसको रिमूव कर दें। कोई मिसकैरेज जो है ना वो अब होके रहेगा। इनकम्प्लीट मिसकैरेज, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अच्छा, ये जो इनकम्प्लीट मिसकैरेज है इसके अंदर मोस्टली एक MCQ किस तरह से आता है कि पेशेंट है जो, कौन सा सिनेरियो है जिसमें आप क्लिनिकली जो डायग्नोसिस है वो सुपीरियर है रादर देन
अल्ट्रासाउंड और एनी अदर थिंग, तो दिस इज़ इनकम्प्लीट मिसकैरेज, जिसमें आपको रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मिलेंगे, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेशेंट को पेन होगी, स्पेकुलम पे ऑस ओपन होगी, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कैन बी इन द सर्वाइकल ऑस। रिमूव करें प्रेगनेंसी टिश्यू एट द टाइम ऑफ स्पेकुलम इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज़ आप इसको एक्सपेक्टेड भी छोड़ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं कर रही, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। कंप्लीट मिसकैरेज इज़ एन एम्प्टी यूट्रस, need serum HCG to exclude ectopic pregnancy if no previous ultrasound identify intrauterine pregnancy. Pain and bleeding has resolved. इसमें होता क्या है कि पेशेंट को ना पेन है ना ही ब्लीडिंग है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, और स्पेकुलम पे सर्वाइकल ऑस क्लोज्ड और टोटली सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। मिस्ड मिसकैरेज क्या है कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी और कोई फेटल हार्ट रेट नहीं, ठीक है, दिस इज़ मिस्ड मिसकैरेज। एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है पेशेंट, ऑफन डायग्नोज्ड एट बुकिंग अल्ट्रासाउंड एंड एक्सपेक्टेड मेडिकल एंड सर्जिकल। मिस्ड मिसकैरेज में हम लोग वैसे तो मेडिकल मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड आपकी फर्स्ट लाइन है, उसके बाद फिर मेडिकल और फिर सर्जिकल हम कहाँ पर ऑफ़र करते हैं, जहाँ पर हमें पेशेंट वैसे ही हाई रिस्क होती है फॉर हैवी ब्लीडिंग के लिए, या फिर मोस्टली आप देखते होंगे जो आपके पास OPD का सिनेरियो बनता है कि पेशेंट वैसे रूटीन में 16 वीक्स है या 12 वीक्स है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग है उसमें गेस्टेशनल सैक 7 वीक्स का है, ठीक है, यानी कि देयर इज़ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द गेस्टेशनल एज एंड द गेस्टेशनल एज ऑन द अल्ट्रासाउंड, यानी कि जब उसका मिस्ड हुआ था तब और अब में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो फिर इट्स मीन कि देयर इज़ सम दिस इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक ना फॉर द पेशेंट, तो उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं ज़्यादा, तो ऐसे सिनेरियो में हम सर्जिकल को ऑप्ट करते हैं। ये भी स्पेसिफिकली सिनेरियो आता है जिसमें उन्होंने डिस्क्रिपेंसी दी होती है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे गेस्टेशनल एज की, और यानी कि मिस्ड मिसकैरेज जो है ना वो पहले हुआ होता है काफ़ी, तो उसमें फिर हम सर्जिकल ऑप्शन चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है कि नोट दैट अ पेल्विक एग्जामिनेशन इज़ नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड इफ़ द पेशेंट हैज़ हैड एन अल्ट्रासाउंड, सो अरेंज अल्ट्रासाउंड फर्स्ट इफ़ यू पॉसिबली कैन। फिटल हार्ट देखें आप और HCG आप करवाएंगे उसमें। एटोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है इसमें, कॉजेज़ क्या है हमारे पास, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, मेडिकल या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ड्रग्स एंड केमिकल्स। इन्वेस्टिगेशंस, ओके, इन्वेस्टिगेशंस में क्या है कि इट इज़ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट टू असेस द वुमेन हु इज़ मिसकैरिंग क्लिनिकली, ठीक है, ABC abdominopelvic examination in conjunction with the results of investigation below. It goes without saying that your patient may be emotionally distraught as well distressed by her physical symptoms. Transabdominal ultrasound या फिर transvaginal ultrasound, a single ultrasound can diagnose a miscarriage if there is a pregnancy within the uterine cavity and certain criteria are met. Hemoglobin and group and safe or cross match if patient is severely compromised. Measure to assess the degree of vaginal loss and rhesus status. Okay, management क्या है, अब miscarriage can be managed usually an expectant medical or surgical approach depending on the clinical presentation and the patient choice. Expectant management हम कहाँ करें, expectant management allows for the avoidance of surgery after a spontaneous miscarriage where the pain and bleeding resolve. A repeat ultrasound is not required to confirm completion, ठीक है, one thing जहाँ पर पेन और ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है तो आपको अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत नहीं है। Women may be advised to take a urinary pregnancy test after 3 weeks and attend if it is positive. Women undergoing expectant management may require unplanned surgery if they start to bleed heavily. तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट अलाउज फॉर द अवॉइडेंस ऑफ सर्जरी। सबसे पहली बात तो ये है कि स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज के बाद आपको फिर ब्लीडिंग पेन रिजॉल्व होगी, तो सब चीज़ें। अब वुमेन नीड एडवाइस टू टेक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। आपने यहाँ पर जो फिगर याद रखना है वो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 3 वीक्स, कि जब भी मिसकैरेज के पेशेंट है तो आपने उसको 3 वीक्स के बाद कहना है कि वो अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ले, फ़ौरन नहीं कहना, 3 वीक्स के बाद वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए। ओके,
medical management. Medical treatment care is increasingly used for in an outpatient setting to allow the woman to miscarry at home, and it involves the administration of a single or repeated vaginal या फिर sublingual dose of prostaglandin analogs जो कि misoprostol है. Some centers use pre-treatment with progesterone antagonist mifepristone if over 9 weeks gestation. ठीक है. The side effects include if over 9 weeks तो mifepristone वो यूज़ करते हैं. The side effect include pain, vomiting and diarrhea, and women are routinely provided with the pain relief and antiemetics. As with expectant management, there is no need for routine scan follow-up, although a post-treatment pregnancy test is recommended. Women undergoing medical management of miscarriage need to understand that they may need surgical treatment if medical treatment fails, जो कि 10% फेलियर रेट है उसका. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेडिकल ट्रीटमेंट का फेलियर रेट कितना है, या फिर वो हैविली ब्लीड करती है तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. अब आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे. अब आप ये देखें कि कहाँ पर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट को प्रेफर करना है. सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ प्रेफर्ड कहाँ? इफ़ देयर इज़ persistent excessive bleeding, patient hemodynamically unstable है, or if the woman favors the option. It can be done by manual वैक्यूम एस्पायरेशन, जो कि हमने क्या कहा था कि अप टू 12 वीक्स तक हम मैनुअल वैक्यूम 14 वीक्स तक हम मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन कर सकते हैं. ओके. अंडर लोकल एनेस्थेटिक इन एन आउट पेशेंट क्लिनिकल सेटिंग इफ़ द वुमन इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. More commonly, it is done as a day case in theatre under general anesthesia. Vaginal or sublingual misoprostol is frequently used to ripen the cervix to facilitate the cervical dilatation for suction, curate insertion and reduce the risk of trauma and hemorrhage. तो आप प्री ट्रीटमेंट आप ये कर सकते हैं इसके साथ, इसको करने के लिए, राइप करने के लिए सर्विक्स को. However, surgical evacuation has its drawbacks, including the risks such as uterine perforation, post-operative pelvic infection, cervical trauma, and subsequent cervical incompetence. तो these are the complications of this. Counseling आपने की miscarriage can be a very distressing experience and a psychological impact, sense of bewilderment and feeling of depression and anxiety should be underestimated. Okay, patients who have suffered miscarriages should be counseled to ensure that they understand that most miscarriages are non-recurrent and they are not to blame for their loss. ठीक है. तो बस this is our social issue. ठीक है. तो but good not to blame the woman. ठीक है. it can happen. Okay, recurrent miscarriages, first of all, this definition: the loss of 3 or more consecutive pregnancies is recurrent miscarriage, and it affects 1% of couples. Risk factors for the recurrent miscarriages include both advancing maternal age and paternal age also. Okay. Obesity, balanced chromosomal translocations, uterine abnormalities, antiphospholipid syndrome, and investigation of recurrent miscarriage should involve testing for the antiphospholipid antibodies, imaging of the uterus. ठीक है. अब देखें यहाँ पर उन्होंने 2 बातें आपको क्या कही. टेस्ट करने के लिए आपने टेस्ट जब करना तो किसको टेस्ट करना है आपने? दिस वन. एक तो टेस्टिंग फॉर द एंटीबॉडीज़, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, और इमेज करना है आपने यूट्रस को. ठीक है. ये 2 चीज़ें. प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इन ए सब्सिक्वेंट मिसकैरेज शुड बी सेंट फॉर द साइटोजेनेटिक एनालिसिस. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है कि आपने प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को भेजना है साइटोजेनेटिक एनालिसिस के लिए. वेयर टेस्टिंग रिपोर्ट ऑफ अगर अनबैलेंस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है आ जाती है बेबी में. ठीक है. अगर बेबी में आपको अनबैलेंस स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मिलती है तो फिर हम पेरेंटल पेरिफेरल ब्लड कैरियोटाइपिंग कराएंगे फॉर बोथ पार्टनर्स. ठीक है. फिर आपने पेरेंट्स की करवानी है. एस्प्रिन एंड लो डोज हेपरिन कैन रिड्यूस अ मिसकैरेज रेट इन वुमेन विद APS बाय 50%, and
बैलेंस ट्रांसलोकेशन मे बी ओवरकम बाय प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस और गैमीट डोनेशन। ओके, तो दिस इज़ अबाउट अगर 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 आपको बैलेंस ट्रांसलोकेशन मिल जाती है तो उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन क्या है मैनेजमेंट के लिए, तो वो दिस इज़ द ऑप्शन। कंजेनिटल यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ इंक्लूडिंग उसमें क्या है, सेप्टम हो सकते हैं, यूट्राइन सेप्टम हो सकते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, तो इनके लिए सर्जिकल ऑप्शन है हमारे पास। ओके, ऑल्दो treatment with the progesterone, corticosteroids or metformin has been advocated and there is insufficient evidence to recommend their use at present, and most couples have normal investigations and the value of psychological support. Serial ultrasound scans during pregnancy has been demonstrated in the several randomized studies. ओके, ये हमने किया है मिस कैरेज को यहाँ से 10 टीचर से। आप लोगों ने इसके साथ मिस कैरेज का चैप्टर कर लेना है EBM से ज़रूर, ठीक है, तो आपका ये टॉपिक फर्दर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।